Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. So let us start with today's first topic. So today's first topic is implementation of project under waste to energy program. So government of India has basically taken several initiatives to set up the bioethanation plants all over the country. Okay, so which will include like four programs. First of all, there is a program which is launched by Ministry of New and Renewable Energy. Under this, a national bioenergy program has been implemented. This will implemented in two phases basically. Okay, so uh, the this program supports setting up a bioenergy plants by providing central financial assistance. Okay, means we can it will assisted by the central level and central bioenergy plant. Okay, next is Satat scheme, like we have already mentioned about Satat. So in the comment section you will give me the full form of Satat. What is Satat? Okay, so this initiative will assure offtake of bio or CNG compressed biogas, that is CBG, after purification through oil marketing companies, okay, for sale as automotive fuels. Next is our Govardhan scheme. We have already mentioned this. These all topics are very important for your mains perspective. And if you want the PDF of this video, you can go through our Telegram link, that is at the rate PIB Daily 123. Right. Next is finalization of standard design, construction, installation, and operation of biogas, that is biomethane plant code of practice. All right. So I hope you understand this one. This is not very difficult to memorize, but we have to in our upcoming videos and in our previous videos as well, we have covered some schemes repeatedly. So make sure you note it down and make sure you just keep revising it. Next one is measures taken for population control. As we all know that we have like left behind the China, so we are now on top number in terms of population. So the government accords some top priority to the National Family Planning Program, which is guided by the tenets of National Population Policy 2000 and National Health Policy 2017 to address the unmet need for family planning. So basically under this program we will meet the need which are not yet fulfilled for family planning. So let us discuss the measures taken by our government. So first one is expanded contraceptive choices. First, our step this talks about like expanded contraceptive choices. Like government is continuously encouraging to have some contraceptive measures. Like it is talking about the current scenario is based on like condoms, combined oral contraceptive pills, emergency contraceptive pills, intrauterine contraceptive devices, IUCD, that is, and through sterilization we can have contraceptive. So with inclusion of new contraceptives like your MPA through Antara program and like Chaya. Next is Mission Parivar Vikas. So under this mission, basically it is implemented till now in 13 states for substantially increasing access to contraceptives and family planning services. So this will encourage the various kind of societies groups towards family planning services. Next is compensation scheme for sterilization acceptors, which provide compensation for loss of wages to the beneficiaries for sterilization. All right. Next is post pregnancy contraceptions. Like in our country we have seen because of this reason most of the parents have multiple children. So to avoid this, post pregnancy contraception is suggested in the form of post partum intrauterine contraceptive device, that is PPIUCD, post abortion intrauterine contraceptive device. So these are basically some devices to have like you can say like this all are the method of post pregnancy contraception. Next is World Population Day and Fortnight and Vasectomy Fortnight are observed every year to boost awareness on family planning and services delivery across all state duties. So on World Population Day, in the comment section you can tell me when is World Population Day celebrated. So basically on this day government has have suggested some awareness program like family planning and in all UTs and states. So these kind of programs are running to make people aware. Next is under home delivery of contraceptive scheme, आशा डिलीवर contraceptives एट डोर स्टेप ऑफ बेनिफिशरीज. हम देख सकते हैं जो आज आशा वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर इस तरह की जो contraceptives हैं वो लोगों को बांट रहे हैं.
Next is Family Planning Logistic Management Information System, that is FPLMIS, is in place to ensure last mile availability of family planning commodities across all the levels of health facilities. मतलब this all is basically to provide logistic management information system के थ्रू लोगों को commodities किसी भी लेवल पे जो भी health facilities के थ्रू वो प्रोवाइड किए जाएंगे. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज. हम देख रहे हैं इस समय क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है. आई थिंक ये हर अल्टरनेट डेज पे हमें देखने को मिल रहा है. तो हम ये देखेंगे कि हेल्थ रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे. कह रहे हैं यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, ये आपकी हेल्थ रिस्क से एसोसिएटेड जो भी हज़ार्ड्स हैं उस पर एक विशेष ध्यान दे रही है. जो भी हज़ार्ड्स हैं जो जिन पे हेल्थ पे खासा प्रभाव पड़ने वाला, तो उनके लिए सपोर्टिव रोल मैंडेट कर रही है, जो कि आपका NDMP 2019 के तहत ये कुछ एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराया गया था. यहाँ पे क्या था, अंडर द नेशनल प्रोग्राम एंड ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ NPCCHH, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, हेल्थ सेक्टर में जो आपकी प्रिपेयर्डनेस है उसको और इंक्रीज़ कर देना, और विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप के साथ साथ. अब now let us see toward what are the various key activities undertaken for the initiative to mitigate health risk associated with various health hazards. First one is National Action Plan on Climate Change and Human Health. So इस प्रोग्राम को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि जो हम अपने की प्रायोरिटी वगैरह हैं वो हेल्थ सेक्टर को दे सके, जो एट वेरियस लेवल्स लाइक एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल. तो इससे क्या होगा, हम जो आपके की स्टेक होल्डर्स हैं उनको पहचान कर सके और उनको एनकरेज कर सके, जो हेल्थ केयर के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए. साथ ही साथ जो अर्ली वार्निंग अलर्ट्स जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए दिए जाएंगे, इसको भी इनिशिएट किया गया हेल्थ सेक्टर को हेल्थ सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर करके, जिसमें जैसे मार्च जुलाई में जो हीट वेव्स होती हैं, फिर आपका दिसंबर जनवरी में आपकी कोल्ड वेव्स चलती हैं, तो इनकी फोरकास्टिंग पहले से हो ताकि लोग अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको बढ़ा सकें. साथ ही साथ जो आपका फ्लड अलर्ट है जो आपकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू टाइम टू टाइम रिलीज़ होता रहे ताकि लोग हैं वो अवेयरनेस उनमें बनी रहे. साथ ही साथ एयर क्वालिटी भी उसकी भी फोरकास्ट हो, जैसे कि दिल्ली वगैरह में स्मॉग वगैरह की क्या कंडीशन है, तो ताकि लोग इन चीज़ों को देख के उस बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को जिए थ्रू CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट इज़, ताकि स्टेट जो है उसी हिसाब से अपने प्रोग्राम वगैरह को मेंटेन करें. नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ सीजनल हेल्थ एडवाइजरी टू स्टेट. क्लाइमेट सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए हेल्थ इश्यूज़ जो भी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, हीट कोल्ड वेव से रिलेटेड है, उन पे लोग विशेष तौर पे ध्यान दें और उनके लिए लोग अवेयर रहें. नेक्स्ट कह रहा है पब्लिक अवेयरनेस नेशन वाइड, एक नेशनल लेवल पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को चलाया जाए वर्ल्ड हेल्थ डे पे. तो इन सारी चीज़ों को चलाने की बात की जा रही है. ठीक है, टाइम टू टाइम, जैसे कि आपका जून में आपका टाइम टू टाइम हमारे पास, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को हम देखते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं. तो जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहें इन स्पेशल डेज़ पे ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके. नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ नेशनल लेवल वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग ऑफ स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स. ये क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेन किया जाएगा, जैसे कि एयर पॉल्यूशन रिलेटेड जो इलनेस वगैरह है, सर्विलांसेस वगैरह किए जाएंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में लोगों को बताई जाएगी, जहाँ पे हेल्थ वल्नरेबिलिटी वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाएगा. तो ये सारे कुछ प्रोग्राम्स थे. नेक्स्ट है एनवायरनमेंट हेल्थ सर्विलांस वगैरह किए जाएंगे ताकि एयर पॉल्यूशन और हीट रिलेटेड इलनेस को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे देखा जा सके. उसके बाद है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन फंड्स के थ्रू स्टेट यूटीज़ को ग्रीन लो या कार्बन एमिशन मेजर्स के बारे में जो फंड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि लोग कार्बन एमिशन को कम कर सके. नेक्स्ट, फर्दर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन एंड क्लाइमेट रिजिलियंट हॉस्पिटल्स हैज़ बीन मेड अंडर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स IPHS 2022. ऑलराइट, our next topic is technology development fund scheme. So this is basically TDF, that is technology development and fund. So this funding scheme is a program of Ministry of Defense. आपको मिनिस्ट्रीज़ याद रखनी ही रखनी है किसी भी हालत में, ये आपके ऑनलाइनर में बहुत मतलब कॉमन है पूछना. तो जो भी आपकी TDF है, ये इसको लॉन्चिंग करने वाले ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिसको DRDO के अंदर एग्जीक्यूट किया जा रहा है थ्रू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. याद रखना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड इज़ ए प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस executed by DRDO under Make in India initiative. So the government of India has approved TDF scheme to encourage participation of public private industries, especially
MSME and startups to design and develop various defense technologies indigenously। मतलब हम अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए जोर दे रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। डिफेंस सेक्टर में भी हम काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं कि कैसे इंडिजिनसली डेवलप डिवाइसेस को और उनके यूसेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है कि जो TDF स्कीम है ये एक फ्लेक्सिबल फंडिंग अप्रोच को अपनाएगी, ताकि जो अप्लीकेंट्स जो भी इनके पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं, हैंस 2 टाइप ऑफ फंडिंग मैकेनिज्म अवेलेबल अंडर द स्कीम्स आर गिवन बिलो। तो फंडिंग स्कीम्स 2 तरह की होगी। पहला है आपका रीइंबर्समेंट एंड सेकंड इज एडवांस in reimbursement the DRDO share of project cost is paid in a maximum of 5 installment. How much? 5. Okay, in the form of reimbursement upon successful achievement of milestones, means the project cost is paid in maximum 5 installment. किस फॉर्म में दिया जाएगा? reimbursement upon successful achievement of milestone. एडवांस में क्या कह रहा है? इसके स्टैगर्ड अप्रोच को अपनाया जाएगा टुवर्ड प्रोजेक्ट फंडिंग इन दिस स्कीम इज इन द फॉर्म ऑफ एडवांस फंडिंग सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 माइलस्टोन ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एजेंसी DA may avail in advance upon producing a bank guarantee of the same amount as collateral. Okay. नेक्स्ट न्यूज़ इज देखिए क्या हुआ था, डबलिंग फार्मर्स इनकम जो ये टॉपिक है हमारा, ये आपका इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने इसको अपना 2016 में लॉन्च मतलब इसको बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, ताकि फार्मर्स डबलिंग फार्मर्स इनकम्स को लेके कुछ स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाई गई थी, जिसे जो अपनी रिपोर्ट जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2018 में सौंपी थी। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मेंशन्ड है आपका क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, लाइफ स्टाइल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। ओके, एफिशिएंसी रिडक्शन इन कॉस्ट और प्रोडक्शन को सोर्स में जो है उस सोर्सेस को यूज़ करना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना, डाइवर्सिफाई करना हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, शिफ्ट ऑफ सरप्लस मैन पावर फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस, मतलब फार्मिंग से नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशंस के लिए मैन पावर को जो है उसको उसकी शिफ्टिंग करना। ठीक है, मतलब उसके अलावा भी, ताकि वो अपने जो का डायमेंशन उसको और ब्रॉड कर सके। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स को अगेन हम यहाँ डिस्कस करते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स थी। सबसे पहले आपका है यहाँ पे PM किसान, वी हैव सीन दिस स्कीम मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स वगैरह में जो क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। एक MSP फिक्स करना 1.5 टाइम, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लगभग 1.5 गुना आपकी MSP को फिक्स किया जाए, ऐसी बात कही जा रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना, मतलब तो आए दिन बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, माइक्रो इरीगेशन फंड, FPOs हो गया, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, बी कीपिंग और हनी मिशन, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग सॉइल हेल्थ कार्ड। ये हम डिस्कस किए थे ना कि सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब, सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मिट्टी के हिसाब, मिट्टी राइट अमाउंट ऑफ सॉइल एंड राइट चॉइस ऑफ सॉइल, ये बात की गई थी। सेटिंग अप ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको नाम बोले थे। लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इम्प्रूवमेंट इन फार्म प्रोड्यूस लॉजिस्टिक, इंट्रोडक्शन ऑफ किसान रेल। ओके, MIDH क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइप करके बता दें, नेक्स्ट वीडियोज़ में फॉर श्योर उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्री और अलाइड जो एग्री कमोडिटीज़ हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। सो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSM की जो मिशन है उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे एरिया जो आपका जो प्रोडक्शन है पल्सेस वगैरह का, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना इन ओवरऑल लाइक 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज़ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ऑफ द कंट्री। अब इस NFSM जो पल्सेस, उसके तहत क्या क्या बात की, पहली बात की गई कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं जो क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशंस को इम्प्रूव करने के लिए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन द पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेमोन्स्ट्रेशन और क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, improved farm machineries. Okay, resource conservation machineries. Okay, next is tool efficient water application tools, tool protection measures, nutrient management, soil ameliorants, मतलब सॉइल की सुधार करना, प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट, क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग के लिए। एंड जो आपका NFSM है, NFSM यानी कि
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस के लिए। ओवरऑल इसमें आपको पल्सेस की ग्रोथ के लिए एनकरेज किया जाएगा। तो उसके लिए या तो आपको क्रॉपिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना हुआ, सीड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना हुआ, या फिर हाई वेराइटीज सील्ड उनको प्रोवाइड करना हुआ। इस तरह के उनके उनके इससे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इनिशिएटिव्स जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड मिनिकेट्स ऑफ न्यूअर वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस के लिए, मतलब मिनिकेट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो पल्सेस की न्यू वेराइटीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्वालिटी सीड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस वगैरह दिए जाएंगे किसान विज्ञान केंद्र वगैरह के थ्रू। ठीक है, ये सब भी NFSA में अब इंक्लूड किया जाएगा। और जो 150 सीड्स हब पल्सेस पे हैं उसको सेटअप किया गया, जो आपका सेटअप किया गया था सिंस 2016-17। ठीक है, ये भी आप मतलब ताकि वो बेसिकली जो सीड्स हैं पल्सेस की क्वालिटी को अवेलेबल किया, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट दिस टॉक्स अबाउट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल ऑफ पल्सेस क्रॉप्स in the country, the ICAR is undertaking basic and strategic research on these crops and applied research in collaboration with static agriculture universities for developing location specific high yielding varieties and matching production packages. Okay, नेक्स्ट फर्दर टू एंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स, ताकि फार्मर्स को उचित प्राइस मिल सके, गवर्नमेंट ने कुछ अम्ब्रेला स्कीम्स लेके आई, जैसे कि आपका PM आशा, जिसमें क्या होगा प्राइस सपोर्ट स्कीम वगैरह होगी, PSS, फिर आपका PDPS प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम है, एंड नेक्स्ट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉक स्कीम। इनमें क्या किया जाएगा ना कि फार्मर्स को MSP वगैरह मिल जाए, इसकी इंश्योरिटी की जाएगी ताकि वो अपने जो उनका जो प्रोड्यूस जो भी हो उसके लिए। अब देखिए कह रहा है PSS स्कीम यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम। सो ये अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम इसमें क्या होगा कि जो आपका प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट क्या होता है, देखिए प्रोक्योरमेंट अगर आप अनाज हो गए उसको स्टोर करने की प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट जो होगा इसको डायरेक्टली अंडरटेक किया जाएगा फ्रॉम प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स कन्फॉर्मिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स वगैरह के थ्रू। जो फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स है उसके तहत इसको स्टोर वगैरह किया जाएगा। ठीक है, जो अभी आपके सेंट्रल नोडल एजेंसीज़ के थ्रू इसको किया जाएगा, जिसके जो भी आपका इसमें आपको स्टेट लेवल की जो एजेंसीज़ होंगी वो क्या करेंगी, स्टेट लेवल एजेंसीज MSP वगैरह पे गवर्नमेंट को प्राइस अनाउंस करेंगी। एज व्हेन प्राइसेस फॉल बिलो द MSP ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग पीरियड। अगर हार्वेस्टिंग पीरियड में ही अगर MSP बहुत डाउन हो जाती है तो स्टेट वगैरह जो है सेंटर के थ्रू उनकी जो है प्रॉपर हेल्प की जाएगी किसानों को। ओवरऑल यही बात कही जा रही है। नेक्स्ट अभी ऊपर हम न्यू सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहे थे ना, ठीक है, यहाँ पे आ गया न्यू सॉइल हेल्थ कार्ड। इससे आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाना है ताकि आपको ये कभी भूल ही नहीं सकता। फिर बस ये है कि मल्टीपल रिवीजन इज की टू सक्सेस, तो हमें बार बार रिवाइज करना है इन सारे स्कीम्स को, तभी हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, तभी हम अपने मेन आंसर राइटिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन सारे जो भी हम ये टॉपिक्स कवर करें। कह रहा है अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2014-15। आपको ये डेट याद रखनी है सॉइल हेल्थ कार्ड में, ये वन डे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो ये जो हेल्थ कार्ड है ये 2014-15 में आया था। ये क्या है, अ मैसिव प्रोग्राम ऑफ सॉइल सैम्पलिंग का एक मैसिव प्रोग्राम है, उनकी टेस्टिंग करना, जनरेशन ऑफ HHCs। वो लॉन्च टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड को इशू करे फार्मर्स को। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये क्या करेगी, बेसिकली ये फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस कैसा है, सॉइल को क्या क्या रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन की ज़रूरत है कि सॉइल में कैल्शियम रिच की सॉइल में को फॉस्फोरस चाहिए, प्लांट की सूटेबिलिटी के हिसाब से उसकी फर्टिलिटी को देखते हुए उसकी फर्टिलिटी को सॉइल हेल्थ को मेनटेन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड सम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस थ्रू न्यू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ध्यान दीजिए यहाँ न्यू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात की जा रही है। द सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल हैज़ बीन रिवैम्प्ड ओके and integrated with a geographic information system. It comes with this scheme, this new interventions like geographic information system. This system so that all the test results are captured and seen on a map. मतलब उस पोर्टल के थ्रू एक मैप पे फार्मर्स जो हैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को देख सकें। ऑलराइट, टू मेक द इम्प्लीमेंटेशंस और मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम स्मूथली रन करने के लिए फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड पर उनका ईजिली वो एक्सेस कर सके। जो उनके मोबाइल वे एप्लीकेशंस हैं उसको थोड़ा सा और उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड किया जाएगा विद द एडिशनल फीचर्स। उसमें कुछ फीचर्स को ऐड किया जाएगा। कौन कौन के फीचर्स को, जैसे कि
restrict the sample collection region of the village level entrepreneur or operator, collecting the soil samples, auto selection of the latitude and longitude of the location, generation of a QR code to link with the sample and test results of all the samples directly on the portal from the GeoMap labs without any manual intervention. उन वो डायरेक्ट लैब से कनेक्ट कर पाएंगे बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशंस के. ओके. सैम्पल्स आर कलेक्टेड थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन. सैम्पल्स कलेक्ट कैसे किए जाएंगे? मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू. सॉइल हेल्थ कार्ड्स आर जनरेटेड ऑन रिवैम्प्ड पोर्टल. सॉइल हेल्थ कार्ड को उस रिवैम्प्ड पोर्टल पे जनरेट किया जाएगा. सो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ पुट योर प्रॉब्लम्स इन द कॉमेंट सेक्शन. I will try myself best to resolve that. And if you want to get the PDF of this video, you can simply type @PIB Daily 123 on Telegram channel. You can go over there, you can check out, and you can get the free of cost PDF along with certain newspapers as well. So I hope you like this video. Please like, share, and subscribe. Thank you and Jai Hind.